Hello, dear student. Very good morning to all of you. This is Gore sir. I am from India. My native place is Chandrapur, present in Maharashtra state. Currently, I am working as a IIT JEE chemistry faculty in Spectrum Adventure coaching classes, Assam, located in Dibrugarh. From last 18 years, I am continuous in IIT JEE field and work as a IIT JEE chemistry faculty. आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसका रीजन है मैंने एक YouTube चैनल बनाया है और वो YouTube चैनल का नाम डॉक्टर गोरे सर टेक्निक केमिस्ट्री। ये चैनल का जो मोटो है, मैंने देखा है कि जो बच्चा विलेज प्लेस में पढ़ता है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत डाउन है, उसके पास में ना तो ब्रांडेड कोचिंग क्लास पहुंचा है, ना ही उसके पास में प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, ना उसको डीपीपी मिलता है, एंड देयरफॉर दैट स्टूडेंट नॉट कॉम्पीट विथ सिटी प्लेस स्टूडेंट. So my channel motto is to reach such type of students which are located in village place and which are economically very poor student. Because myself, Mr. Ranjit Gore, and I am also my native place is in Chandrapur, that is Sindhula mines, that is village place. I suffering a lot of problems during my study. Hope you all students also facing same problem. This is the educational problems. Second educational problem is how to study, how to crack IIT JEE examinations by doing study. For that purpose, this channel, Dr. Goresan Technique Chemistry, this channel is very helpful for you because I telling you truth of my life. When I start my career in science field, because I am basically belongs from Marathi medium, after that I take science. At that time, in 11th standard, remember that, in 11th standard, I does not know the spelling of oxygen. And I develop myself, I complete my MSc, I complete my B.Ed, and also I complete my PhD. What problem faced by me, same problem are faced by you. So student, if you not subscribe my channel, if you not like my channel, then please subscribe and like my channel for further videos, upcoming videos. I giving you uh, techniques, tools and trick to develop chemistry. Many students fear with chemistry because there is a lot of reactions. There is the what we say, there is the number of reactions, and that is very difficult to store in our brain. But I develop certain tricks, certain techniques, and certain tools to remember whole chemistry. Some techniques is my own techniques. Some techniques I develop from different books, and some techniques I achieve from many faculties. Many faculties also help me to develop such type of techniques. Today we are discussing what is chemistry, how to study chemistry, what is the base of chemistry. On that topic, first of you remember that this is the one of the platform. That platform you develop from basic level up to IIT JEE मेंस लेवल. मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, उसके तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए. ये आप लोग वो स्टूडेंट जो ग्राउंड लेवल पे हो, जिनको कुछ भी केमिस्ट्री नहीं आता है, ऐसी एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये ग्राउंड लेवल है. और ये है हमारी सीढ़ी, ये स्टेप बाय स्टेप जाती है.
स्टेप बाय स्टेप जाती है और वो जाके मिलती है आईआईटी से। और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए खास करके स्टूडेंट के लिए मैंने एक चैनल जो बनाया है डॉक्टर गोरे सर टेक्निक केमिस्ट्री, इसका यूज करके आप यहाँ पे आराम से पहुंच पाओगे। अब होता क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ये आता है डायरेक्ट स्टेप 3 पे चला जाता है और फिर बोलता है सर हमें उतना समझ में नहीं आ रहा है, और ये जो वीडियो देखा था हमने उतना कुछ समझ में नहीं आया। कोई स्टूडेंट है डायरेक्ट 5th स्टेज पे चला जाता है, 7th स्टेज पे चला जाता है, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो बेस क्या है, यहाँ पे हमें बेटा बेसिक पढ़ना होता है, बेसिक पढ़ना होता है, बेसिक पढ़ना होता है। पहले तो आप अपना बेस जो है केमिस्ट्री के लिए जो बेस लगता है वो मजबूत कीजिए, उसके बाद में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 चलते जाइए, आपको मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के बहुत सारे आसान आसान तरीके हैं। मैं ये एजम्पशन कर रहा हूं कि यू आर नॉट सुपर माइंडेड, यू आर नॉर्मल ब्रेन स्टूडेंट। मैं ये एजम्पशन करके आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये केमिस्ट्री होता क्या है और केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं और वो ब्रांचेस का बेस क्या है, बेस क्या है जिससे हम लोग आगे का केमिस्ट्री, फर्दर केमिस्ट्री अप टू आईआईटी जेईई मेन लेवल तक का केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये एक वादा करता हूँ, आज ही एक वादा करता हूँ, ये मेरा YouTube पे पहला वीडियो है। मैं पहले ही वीडियो में आपको ये वादा करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके ब्रेन में सीधा स्टोर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग में वो आप देखिएगा। इसके बाद में ये आज का मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद में मैं चलाने वाला हूँ, एक सीरीज चलाने वाला हूँ 100 डे 100 टेक्निक्स। 100 डे 100 टेक्निक्स के नाम से मैं एक चलाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स, ट्रिक्स और टूल यूज किए हैं मैंने। कुछ मेरे हैं अपने खुद के बनाए वाले हैं, कुछ मैंने दूसरों से लिए वाले हैं और कुछ डिफरेंट बुक से भी कलेक्ट किए वाले टेक्निक्स हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। आखिरकार ये केमिस्ट्री होता क्या है। प्लीज स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो अप टू एंड because I am telling you some important tricks and techniques how to boost up your chemistry knowledge. Clear? तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आप ग्राउंड लेवल पे हो, ये सीढ़ी है, ये आईआईटी लेवल है, इसको कैसे पहुंचा जाता है इसके बारे में बताऊंगा। और आज के दिन में मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करना है। काफी लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता है कि शुरुआत कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे होगा। काफी लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि अरे भाई फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगने के पीछे रीजन है क्योंकि आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री का बेस मजबूत नहीं किया है। इनऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता है किसी को, तो इनऑर्गेनिक का बेस क्लियर नहीं किया है। किसी को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगता है, इसका मतलब है कि उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्लियर नहीं किया है। तो बेस कैसे क्लियर करना है, बेस क्या है, वो सब चीजें मैं आज बताने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने ये आपके सामने पूरा कट कर दिया है। अब मैं आपको केमिस्ट्री होता क्या है ये बताने जा रहा हूं। अगर किसी ने मान के चलो मुझे पूछ दिया सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, भाई मैं तो सीधा बोलूंगा कि भाई केमिस्ट्री का डेफिनेशन है पुलिस सब इंस्पेक्टर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। ये डेफिनेशन है क्योंकि मैंने उस तरीके से लर्न किया, तो मुझे मैं मरते दम तक नहीं बोलूंगा, आप भी इस तरीके से लर्न कीजिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। पुलिस सब इंस्पेक्टर कमिंग फ्रॉम Maharashtra is the definition of chemistry. P stand for property, S stand for structure, I for identification, C for composition, M for matter. तो ये जो P है ये प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टीज है। ये S जो है ये स्ट्रक्चर का है। ये I जो है ये आइडेंटिफिकेशन का है, ये C कंपोजिशन है, और ये M जो है ये मैटर है बेटा, मैटर है। अब आप मरते दम तक केमिस्ट्री का डेफिनेशन नहीं भूलोगे,
क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मैंने इसका लिंक जोड़ दिया मेरे साथ में। मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं पीएसआई हूं। पीएसआई कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। मींस पुलिस सब इंस्पेक्टर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ science which deals with property, structure, identification, composition of matter is known as chemistry. अब केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। अब केमिस्ट्री का ब्रांच होता क्या है? केमिस्ट्री के नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, पॉलीमर साइंस है, क्वांटम केमिस्ट्री है। नंबर ऑफ ब्रांचेस केमिस्ट्री के अंदर में आते हैं। लेकिन हमें आईआईटी के लिए सिर्फ 3 टाइप का केमिस्ट्री पढ़ना होता है। वो 3 टाइप का केमिस्ट्री ये है। 3 टाइप की केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये 3 ब्रांचेस हमें अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, अप टू आईआईटी लेवल तक पढ़ना। फॉरगेट मेडिसिनल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम केमिस्ट्री, because that is not present in our syllabus. This 3 chemistry is present in our syllabus. अब यहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री लिखा है। अब फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चा डर रहा है, भाई डर तो लगेगा। मैं जब 12th में था वो टाइम पे मुझे भी डर लगता था फिजिकल केमिस्ट्री से। क्यों? उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल दिखता था, बहुत सारे लॉजिकल न्यूमेरिकल दिखते थे। तो मैं कंफ्यूज हो जाता था ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है वही प्रॉब्लम आपके है, ये समझ के मैं पढ़ाने वाला हूँ। एंड उसी को मैंने नाम दिया है गोरे सर टेक्निक। क्लियर? तो अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। फिजिकल केमिस्ट्री है क्या ये भी नहीं पता रहता है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को पूछ दिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, स्टूडेंट not giving because you know why, because he doesn't know what is the definition of physical chemistry. फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक शब्द दिख रहा है फिजिक्स। यहाँ पे शब्द दिख रहा है फिजिक्स। अब फिजिक्स की बात करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये फिजिक्स जो शब्द है तो यहाँ पे एक फिजिक्स लिख रहा हूं मैं, फिजिक्स है। फिजिक्स की कंसेप्ट, फिजिक्स के कंसेप्ट, फिजिक्स के लॉस, फिजिक्स की थियरी, फिजिक्स के कंसेप्ट काम में आएंगे केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री मतलब बाय यूजिंग फिजिक्स लॉ, बाय यूजिंग फिजिक्स कंसेप्ट, बाय यूजिंग फिजिक्स थियरी, वी सी इनसाइड द केमिस्ट्री। वी सी इनसाइड द केमिस्ट्री। सी इनसाइड द केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होगा बेटा मालूम है? सी इनसाइड द केमिस्ट्री मतलब हम लोग केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन स्टडी करेंगे, कंपोजिशन स्टडी करेंगे और मैटर भी स्टडी करेंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, दिस इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट आई एक्सटेंड दिस डेफिनेशन। मैंने खुद ने ये डेफिनेशन को एक्सटेंड किया है। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका डेफिनेशन होना चाहिए या फिजिक्स प्लस मैथ गिव्स केमिस्ट्री, ये डेफिनेशन होना चाहिए। क्यों? यहां पे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जाने के लिए फिजिक्स के कंसेप्ट, फिजिक्स थियरी और फिजिक्स के कुछ सर्टेन टूल्स यूज करेंगे। साथ में मैथमेटिक्स भी अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स के बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे, मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे, तब जाके हम केमिस्ट्री के अंदर में जा सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन याद रखिएगा, फिजिक्स के साथ में मैथ जोड़ दीजिए और फिजिक्स के कांसेप्ट, मैथ के कांसेप्ट केमिस्ट्री के इनसाइड में जाने के काम में आएगा। दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या होगा बेटा? वी यूज फिजिक्स कांसेप्ट, physics theory, math concept, math theory to go inside to study the chemistry.
to study the chemistry, and chemistry is the this one. Chemistry is this one. This is the physical chemistry. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है इसमें, पढ़ना आखिरकार फिजिक्स से फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों को डर क्यों लगता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, मैंने फिजिक्स में लिखा है, मतलब फिजिक्स के लॉस पढ़ना है, हमें लॉस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके कुछ थियरीज आएगी, वो थियरी पढ़ना पड़ेगी, छोटी छोटी थियरी है वो पढ़ना पड़ेगा। मैथ में भी सेम, लॉस पढ़ना पड़ेगी, इसकी थियरीज पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड चीज है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा अपना खुद का, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व होंगे हमसे। अब इसका बेस क्या है वो बताने जा रहा हूं। एक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर है मोल कंसेप्ट, ये मोल कंसेप्ट है। जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे आपको मैं बता रहा हूं, ये जो मोल कंसेप्ट होता है ना, ये बेटा हर चैप्टर में इंक्लूड है, हर चैप्टर में यूज किया जाता है, हर चैप्टर में। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा बच्चा कि अगर मान के चलो आपको फिजिक्स भी डेवलप करना है, मैथ भी डेवलप करना है, साथ साथ में कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, तो मोल कंसेप्ट के एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। टीचर को पढ़ाने दीजिए मोल कंसेप्ट, टीचर ने पढ़ाने के बाद में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका फिजिक्स और मैथ मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, और फिजिक्स के सर्टेन लॉज भी आपके दिमाग में चले जाएंगे, और आपका फिजिकल केमिस्ट्री ऑटोमेटिक बेस डेवलप हो जाएगा। ये है फिजिकल केमिस्ट्री का बेस, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का बेस। क्लियर? फिजिक्स के लॉज, मैथ के लॉ, फिजिक्स की थियरी, मैथ की थियरी, go inside to the chemistry, and for that purpose you must read mole concept, because in mole concept there we use mathematical tools as well as physics law, as well as for example motion, laws of motion. These laws of motion is used in chemical kinetics of chemical kinetic theory, kinetic theory of gases, kinetic theory of gases. Clear? Then many laws, physics law, viscosity, friction force is also used, okay. Pressure term, temperature term, unit and dimension is one of the unit and dimension, आपको इसमें unit and dimension पढ़ना है, मोल कंसेप्ट पढ़ना है। इस तरीके से ये फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। डोंट फियर दैट, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ में हूं। अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यूअस अगर देखोगे तो आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। सेकंड है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक की बात करने जा रहा हूं। इनऑर्गेनिक पढ़ते समय हमें ग्राउंड क्या बनाना है, ग्राउंड क्या है हमारा, ग्राउंड क्या है। अब ये ग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले तो याद रखिएगा इनऑर्गेनिक, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक खोलोगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा इट इज स्टडी ऑफ एलिमेंट, या स्टडी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। स्टडी ऑफ एलिमेंट से भी क्या एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बेस के लिए पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। अब पीरियोडिक टेबल में आएगा क्या, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आने को होना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आने को होना। फिर उसके बाद में आपको वैलेंसी क्या चीज है वो पता चाहिए, वैलेंसी क्या है वो पता चाहिए। फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये पता चाहिए। जब वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पता चल जाता है तो आप कंपाउंड बना सकते हो। आप क्या बनाओगे, कंपाउंड बनाओगे। जब कंपाउंड पता चलेगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाना चालू हो जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको क्या करोगे, रिएक्शन भी पढ़ लोगे, रिएक्शन भी आपको समझ में आने लगेगी क्या रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, how to form compounds, then we develop structure by using VBTs, valence bond theory, then crystal field theory, so many theories there to develop the structure. Then we go toward reaction. This is the base of inorganic chemistry. Clear? Then we go toward organic chemistry. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते समय आपको एक बात याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन की स्टडी बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसी नहीं है, लेकिन मैं एक आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको
एक सर्टेन डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि स्टडी ऑफ कार्बन, एज वी नो दैट there is hydrogen is involved, there is nitrogen is also involved, there is oxygen is involved, but generally this is the definition study of carbon chemistry. For that purpose आपको सबसे पहले आना चाहिए बेटा यहाँ पे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर आना चाहिए, नोमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी होता है। फॉर्मूला कैसी बनाते हैं, फॉर्मूला कैसी बनता है वो आना चाहिए आपको, ये बेस्ट है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो आना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको एकदम करेक्ट वे बताने जा रहा हूँ, करेक्ट वे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चंस आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे आगे में, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन जो भी वो सब जो चीजें पढ़ोगे उसका टोटल बेस है बेटा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता क्या है, इंटरमीडिएट आता है, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ओके, इंटरमीडिएट आता है। उसके बाद में स्टेबिलिटी आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ आता है, कौन सा एसिड कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है वो पता चल जाता है, उससे रिएक्शन मैकेनिज्म भी इससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो मैं तो आपको एक ही बोलूंगा, जब भी मैं जीओसी पढ़ाऊंगा, जीओसी का एक एक कांसेप्ट पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, जीओसी के बेस के आप लोगों को एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये 1000 क्वेश्चन और ये 500 क्वेश्चंस, वो 1000 और ये 500 क्वेश्चन, ये 1500 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री का डर पूरा निकाल देगा, डर पूरा निकल जाएगा आपका, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा था मैंने। और जब मैंने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा, एक एक क्वेश्चन की कांसेप्ट समझा, तब जाके मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया। तो ये थे बेटा 10, मतलब मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का बेस किस तरीके से, फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स मैथ अप्लाई होता है, इसलिए फिजिक्स के सर्टेन लॉस, मतलब जो भी डिक्शनरी देखी उससे लॉस पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन अपना फास्ट कीजिए और मोल कंसेप्ट के 500 प्रॉब्लम्स लगा दीजिए, आपका फिजिकल का डर निकल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन लिखने को आने को ना, वैलेंसी आने को ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आने को ना, कंपाउंड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो ध्यान में आना चाहिए, रिएक्शन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये बेस है। उसके बाद में ऑर्गेनिक में आओगे तो नोमेनक्लेचर आना जरूरी है, फार्मूला डेवलप करना आना चाहिए। जीओसी याद रखिएगा, जीओसी में बार बार बोल रहा हूं, ये जीओसी इतना काम का चीज है कि जीओसी पे 1000 क्वेश्चंस लगा ही देने का बेटा, तब जाके आपका आईआईटी जेईई का डर निकल जाएगा। और ये था आज का हमारा फंडामेंटल, व्हाट वी हैव टू रीड टू डेवलप द बेस, we have to read this thing. And this is Gore sir. Once again, please subscribe my channel, like my channel for upcoming videos. Thank you. Support me. Please reach my channel to the village place, poor student. I definitely help you, and I give you one. After this video, I am going to start series 100 days, 100 techniques. 100 day, 100 techniques. That is my first series for to develop best of chemistry to make your foundation very well. Thank you very much for watching this video. Hope you all are doing well and you join immediately with me. That is Gore sir, Dr. Gore sir, Technique Chemistry. Thank you very much. Shubh Ratri.